Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for the Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the end of the second chapter. We are trying to complete it today's lecture. We will try to complete the second chapter of Bhagavad Gita. So we have completed the 66th verse, but let's have a fast recap before we go ahead. Can anyone highlight me or enlighten me with what we had studied in the last class? Threefold miseries do not exist for a person who is away from rag and dvesh. Right. We have to detach ourselves. Mm-hmm. And Shanti, we need peace. Mm-hmm. And peace can only come through bhakti. No. Peace doesn't come just by bhakti. The clear-cut formula given in the Bhagavad Gita. Yourself with God first, chant His name. नाचा बुद्धि अयुक्त से नाचा अयुक्त से भावना अभावत कुटता शांतिर आकाशांतिर सॉरी व्हाट इज दैट वर्स एक मिनट न अस्ति बुद्धि अयुक्त से नाचा अयुक्त से भावना अभाव से नाचा अभाव से शांतिर अशांत से कुत सुखम. So it's a clear-cut formula. So first you need to connect with God. Once who is connected to God, he will get bhavanaha or he will get actual Krishna consciousness. One who gets his actual Krishna consciousness will get peace of mind. And without peace of mind, we ought to talk about happiness. खुशी कहाँ से मिलने वाली है जब आपके अंदर peace of mind ही नहीं. So, if we are Krishna conscious, what is the first lakshana of a Krishna conscious person? वो शांति से रहेगा. अरे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं है, वो नहीं है, कूदेगा नहीं. He will take it as a blessing of the Lord. So now we are going to the 67th verse, which is also a very important verse. Indriyanam hi charada yan mano udvijyate tad asya harati pragnam vayur navam iva ambhasah. Translation is, as a strong wind sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. See, again, if you go to the Bhagavatam also tells the various stories of how कोई भी एक इंद्रिय, We got 5 इंद्रियां, कोई भी एक इंद्रिय काफ़ी है आपको मार्ग से भटकाने के लिए. One sense is enough. And in what way does it divert you? It's like, how does this happen? Here Lord is giving an analogy of a boat being swept away by wind. ऐसा बोट कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर हवा इतना स्ट्रांग होता है कि अच्छे अच्छे बोट को भी उड़ा ले जाता है. सो अगर एक इंद्रिय भी आपका वो मन पे मतलब विषय वस्तु पे लग गया, देन इट इज इनफ. नाउ एनीवन कैन गिव एन एग्जांपल फ्रॉम द भागवतम और एनी स्टोरी. अजामिल, बेचारा अजामिल इज किंग भरत. ओके, किंग भरत का स्टोरी थोड़ा डिफरेंट है. किंग भरत वर लॉस्ट एसोसिएशन. First and foremost, even if one is very focused, if one loses association of devotees and tries to practice it alone, it is very difficult. You will not know when you are getting diverted. Yes, Narada was focused, but where is the question of how one sense also focused on the sense object blows you away. आप आपके लक्ष्य से दूर कैसे चले जाते हो. Ajamil, no doubt, the story of Ajamil again and again strikes us. But not only that, one has to be always remembering the story of Narada. Which story are you talking about? In his last life, No. he was a very big singer. Narada's actual story is When he wanted to marry एक बार भी थोड़ा अगर ध्यान लग गया ध्यान विषय वस्तु पे,
एंड वो लगाता कैसे, अच्छे अच्छे भक्त का भी कैसे लग जाता है, माया के वजह से। माया इज सो स्ट्रांग कि व्यक्ति उस पे इस पे लग जाता है। नारद मुनि को पता था कि मुझे इस विषय वस्तु पे ध्यान नहीं लगाना, फिर भी लग गया। सेकेंडली, वन मोर टाइम टेल मी व्हेन नारद मुनि का ये हो गया। चलो नारद मुनि का एग्जाम्पल लेते हैं आज। एग्जाम्पल तो आप लोग खुद मुझे कथा सुना सकते हो। हाँ बोलिए। अच्छा, हाउ डिड दिस हैपन, हाउ डिड नारद मुनि दैट लीला हैपन? He said that I have वो काम के ऊपर मैंने वो कर लिया। हाँ। He went everywhere and told everybody. So please understand one thing. He went and told Shivji, Brahmaji, and finally he went and told this to Vishnu. Vishnu said, "Sir, आपका ऐसा कोई strong है ही नहीं. So most powerful." So what do we understand in this case? कि भाई even not only your senses, even if you are proud about you controlling your senses, that is also disastrous. If you are very proud, I am very strong in controlling my senses. You are very proud, fine. बट जितना आप प्राउड होते हो उतना आपका सेंसेस आपको दूर करा सकता है। आपसे आपको दूर कराना मतलब भक्ति मार्ग से आपको भटका सकता है। सो इट इज वेरी वेरी पावरफुल। प्लीज रीड द परपुट। एनीवन कैन रीड द परपुट। Unless all the senses are engaged in the service of the Lord, even one of them engaged in self-gratification can deviate the devotee from the path of transcendental advancement. As mentioned in the life of Maharaj Ambrish, all of the senses must be engaged in Krishna consciousness, for that is the correct technique for controlling the mind. अम्बरीश महाराज का कैसे उन्होंने सब सेंसेस को लगाया था? How did he have applied all senses? He used to use his eyes to see the Lord, hear the nose, use the nose to smell the tulsi leaves of Lord's feet. He used to use his ears only to listen to the music and the sound vibration of the Lord. He could use his feet only to travel to the temple. He used to use your hand to only clean the temple and do vigorous seva. So he used all his senses for the satisfaction of the Lord. And what was the benefit he got for that? क्या फ़ायदा हुआ उसका? क्या फ़ायदा हुआ? हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जब उनको मारने आए तो भगवान को सुदर्शन चक्र आ गया था ना उनको। हाँ। जब वो मुनि उनको पास आए। हाँ दुर्वासा मुनि आए थे। हाँ तो क्या हुआ था? सुदर्शन चक्र आया था। उनकी रक्षा करने के लिए वो हाँ उन्होंने कुछ उपवास करने बोला। हाँ हाँ राइट, ठीक है। दैट्स मीन शी इज कमिंग टू द क्रक्स ऑफ इट दैट उपवास था। उन्होंने एकादशी का बड़ा एकादशी का व्रत किया था जिसमें 1 साल का एकादशी रहता है। एंड उसके बाद 1 साल का एकादशी के बाद ही वॉज ट्राइंग टू मेक इट ऑन द्वादशी। एंड द्वादशी दुर्वासा मुनि एक्चुअली केम टू टेस्ट हिम। अगर उन्होंने वाकई में किया होता तो सुदर्शन चक्र उनको नचाता नहीं था, काट ही लेता था। बट सुदर्शन चक्र उनको सिर्फ भगा रहा था। क्यों? उन्होंने नाटक किया तो भगवान ने बोला मैं भी थोड़ा नाटक करके देखता हूँ। यू ट्राई टू टेस्ट माई डिवोटी, आई विल ऑल्सो टेस्ट यू। But first and foremost, you have to understand from Ajamil's story, the Sudarshan Chakra did not come from anywhere. Whenever a person is in devotion, the Sudarshan Chakra is already there. He had already given the Sudarshan Chakra to him. Why? It will be always there with you. And the person who does devotion, for him, Sudarshan Chakra is always and always guarding. One may say, अरे प्रभु जी ऐसा कैसा? Devotees don't die? Devotees का accident नहीं होता है? It is some way or the divine arrangement is more stronger than our arrangements. हम लोग जो सोचते हैं वो हमारे हिसाब से सोचते हैं, but Lord has His own arrangements, own ways of thinking and calculating. So it is said in Bhagavatam itself that the Sudarshan Chakra was given to Ambrish Maharaj and was always in Ambrish Maharaj's possession only. The minute he created the Kritya, immediately the Sudarshan Chakra came and tried to protect him. And not just protect him, he knew the Sudarshan Chakra also knew very well that he was just trying to test him. So Sudarshan Chakra was also playing with him. उनको भगाया तीनों लोक में. You mean to say he can run faster than the Sudarshan Chakra? Durvasa Muni could run faster? No. But it was just
इट वॉज शोइंग हिम, गर्मी से उसको जला रहा था, झुलसा रहा था कि भाई थोड़ा तू ज़्यादा कर, फिर तेरे को ठीक करूँगा. सो ही वांटेड टू रेक्टिफाई. एंड फ्रॉम वेयर, हाउ डिड दुर्वासा मुनि कम टू टेस्ट हिम? डज एनीवन नो दैट स्टोरी? इसको पता है, इसकी कहानी पता है? नहीं बोला नहीं मैं आप लोगों को? श्योर राजेश प्रभु, अभी याद आएगा आपको. उन्होंने फास्ट तोड़ने के लिए पानी का एक हाउ कम दुर्वासा मुनि के मन में ये इच्छा हुई कि मैं जाके उसको चेक करूं या उसको टेस्ट करूं? Once Durvasa Muni was going through the jungle and he heard Narad Muni talk about a great devotee. He said, there is a great devotee here in this earth who is Amrish Maharaj, and he is doing all this devotion to the best of his ability, and he is really a great stalwart devotee. तो दुर्वासा मुनि ऐसे ही उसका आदमी है ना, इसके लिए बोलता रहेगा वो. बोलते ना कई बार ये उसका सपोर्ट का आदमी है, इसके लिए बोलता है. आगे गए, दूसरे जगह पे भी सुना, तीसरे जगह पे भी सुना, तीनों जगह पे सुना तो बोला अभी तो देखना पड़ेगा. एंड ऋषि मुनि का स्टाइल ही अलग रहता है. दुर्वासा मुनि इज ऑलवेज एंग्री मैन, हमेशा गुस्से में रहते हैं हमेशा. इमीडिएटली ही केम एंड टेस्टेड. इट वॉज नॉट एट ऑल, नो वेयर हिज इंटेंशन वॉज टू trouble him or to sing. He just wanted to test. He had heard a lot about him, and that is the reason the Sudarshan Chakra killed the Kritya. जो कृत्य बना था उनसे, जो असुर आया था उसको मार दिया, पर कभी भी दुर्वासा मुनि को नहीं मारा. बस दुर्वासा मुनि इज नन अदर देन शिवजी हिमसेल्फ. शिवजी के अंश है. आउट ऑफ द 3 चिल्ड्रन ब्रह्मा विष्णु महेश, जो बच्चे बन गए थे सती अनुसुईया के पास, वो जो शिवजी का अंश था वही दुर्वासा मुनि बने. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स. Yes, who will read the translation? Next verse. Read. Rajesh Prabhu, read the translation. Therefore, O mighty arm, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence. तो कौन है इंटेलिजेंट व्यक्ति? One who restrains his senses from the sense object. और इस दुनिया में जो व्यक्ति ये करता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? अगर आप लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करते हो तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं आपको? पागल. इट्स गुड टू बी दिस पागल देन टू बिकम दैट पागल. जो हम लोग क्या बोलते हैं? वो पागल है, अपनी इंद्रियों की भोग कर रहा है. इंद्रियों को भोग कर करके किसका भला हुआ नहीं. इनफैक्ट ही इज एडिंग ऑयल और पेट्रोल टू फायर, और वो आग जोर से जलने वाली है. ये इंद्रिय तृप्ति हो गई तो दूसरे इंद्रिय तृप्ति आएगा, दूसरा इंद्रिय तृप्ति हो गया तो तीसरा आएगा. सो इफ यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई योर सेंसेस, द सेंसेस विल आस्क फॉर, कीप ऑन आस्किंग मोर, और चाहिए और चाहिए, मांगते रहेगा. वेरएस अगर आप इसके इंटेलिजेंट व्यक्ति का क्या परिभाषा दिया यहाँ पे? जो अपनी इंद्रियों को पूर्णतः कंट्रोल करे. ही वाज एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस फुल्ली. ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन. और इंटेलिजेंस कैसा आएगा? हाउ विल इंटेलिजेंस कम? मेडिटेशन. वेरी गुड. डिवोशन. वेरी गुड. कितना राउंड करते हो आप? कितना राउंड कर रहे हो आप? पहले बताओ जरा. उसे इंटेलिजेंस आने का सवाल ही नहीं होता. रीडिंग व्हाट? नॉवेल्स. देवदत्त पटनायक. देवदत्त पटनायक का भटका हुआ आदमी है वो. हाँ, भटका हुआ आदमी है. देन हु एल्स? व्हाट एल्स? यस, डिटैचमेंट. वेरी गुड. खत्म. So you mean to say tomorrow you go home and say now I become intelligent? Your child comes running, mommy give me some food, now I become intelligent. I'm not going to give anything, I'm detached. Yes, Vandana Mataji. connect to God
कैसा फ़ोन करिए? सरेंडर करिए। सरेंडर कैसे करेंगे आप? भक्ति से। फर्स्ट यू हैव टू सरेंडर टू योर स्पिरिचुअल मास्टर, देन इज द क्वेश्चन ऑफ सरेंडरिंग टू गॉड। तो बहुत दूर की बात है। हाँ मीना माता जी, आप बताइए, आपके अंदर बुद्धि विवेक कैसे आएगा? भगवान की कृपा से। मतलब इधर भी भगवान को बेचारा, उसको काम करना है, आपको कुछ करना है नहीं। हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू ऑल, बिनु सत्संग विवेक ना होय। सत्संग से ही आपको वो बुद्धि मिलेगी, ओनली बाय सत्संग। कृपा सब बात की बात है। कृपा, डिवोशन, सरेंडर, क्या 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 बोला, सब चैंटिंग, ये वो, रीडिंग एंड एवरीथिंग इज ऑल बाद में। फर्स्ट इज सत्संग, दैट इज द फर्स्ट। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ सत्संग में आके बैठते हो, सत्संग में थोड़ा कुछ भी सुना, वो भी फायदेमंद है। याद रखना, सत्संग में कभी लॉस नहीं है। There is one story I told you all. I don't know whether you all remember, forgotten. एक बार एक पिता ने, हम याद है, हाँ, एक पिता ने अपने बेटे को बोल कर रखा था, याद रख, ये कभी सत्संग में मत जाना। सत्संग में कुछ भी बोलेंगे सुनने का नहीं, वो लोग अपना ब्रेन वॉश करेंगे, अपने अंदर वो भक्ति भाव डाल देंगे, कभी गलती से भी मत जाना। तो बेटा बोला ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, सत्संग नहीं, कभी सुनूंगा नहीं, सुनना भी नहीं। अगर किधर दूर पंडाल में से आवाज़ निकलता रहेगा तो वो सुनना भी नहीं। तो उसने बोला ठीक है। तो एक दिन बेटा जा रहा था एक गांव से दूसरा गांव काम के हिसाब से, तो सत्संग हो रहा था, भागवत कथा हो रही थी। तो उसने बोला अभी सुनना नहीं, पिताजी ने बोला है। थोड़ा कॉटन लिया, अपने कान में डाल लिया, जा रहा था। अचानक बेचारा जस्ट वो पंडाल क्रॉस कर रहा था, वहाँ पे वो एक कार का कुआ जो कॉटन था उड़ गया। अभी वो क्या करेगा, कान में तो गिरेगा बात। तो सुना उसने, क्या सुना उसने, अरे याद रखना, भूत प्रेतों का कभी पैर नहीं होता, ज़मीन से 2 फुट ऊपर रहते हैं और उनके पैर उल्टे रहते हैं एंड ऑल दैट स्टफ ही हर्ड। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर तुरंत उसने कॉटन पकड़ के ढाल लिया, मतलब ज़्यादा नहीं सुनने। ठीक गया, फिर दूसरे गाँव में गया, काफ़ी धनी लड़का था। तो एक बार एक चोर आया, बोला अभी इसको लूटता हूँ। तो घर के बाहर आंगन में बैठा था, बोला चलो एक काम करता हूँ, ऐसे नहीं उसको मैं भूत बन के डराता हूँ। तो भूत जैसे कपड़े पहन के आके डराने लगा इसको, मैं भूत हूँ। पहले तो डर गया, बोला हो जल्दी से जा अंदर से तेरे सारे पैसे लेके आ, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊँगा। डर गया, अंदर गया पैसे लेने के लिए। इतना याद आया, अरे सत्संग में तो सुना था भूत तो ज़मीन से 4 फुट ऊपर रहते हैं, हाँ, और पैर उल्टे रहते हैं एंड ऑल दैट, व्हाट एवर इट इज, ही हैड हर्ड ऑल दैट। तुरंत उसको समझ आया, ये झूठ बना, ये बेवकूफ़ बना रहे। अंदर से डंडा लेके आया और उस भूत को पीटा तो भूत भाग गया। तो मतलब वो चोर भाग गया। तो कहने का मतलब क्या है कि याद रखना, सत्संग में कुछ भी सुनो फायदा ही है, नुकसान कभी नहीं। यू विल नेवर एट अ लॉस, यू आर ऑलवेज एट प्रॉफिट। तो सत्संग इज द फर्स्ट. That is why you will say, what are the 8 steps for devotion? भक्ति के, हाँ, श्रवणम, कीर्तनम, then, हाँ, hey, tell me the sequence. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, तस्य साख्यम, आत्मनिवेदनम. हाँ, this is a नवदा भक्ति, जो 9 भक्ति के 9 क्रम है। इसमें पहला क्या आता है, श्रवणम। और श्रवणम कहाँ होगा, श्रवण मतलब सुनना, वो सिर्फ और सिर्फ सत्संग। जब तक आप भगवान के बारे में सुनोगे नहीं, उनके बारे में आप जान नहीं पाओगे। कोई भी चीज़ के बारे में सुनना है, किसी के बारे में पंचायत भी करनी है तो सुनना तो पड़ेगा ना। बिना सुने किसी के बारे में पंचायत भी नहीं कर पाओगे। कैन यू स्पीक एनीथिंग about any person unless until you don't hear or not heard about that person? I think those people have come, make them sit and sit. So, so please understand that
These are all very important things. These are all very important things, the 9 steps. But if the first step is सही नहीं, तो फिर आपका सेकंड स्टेप कहाँ से ठीक होगा? श्रवणम ही ठीक नहीं है तो कीर्तनम कहाँ से होगा? फिर विष्णु स्मरणम कहाँ से होगा? विष्णु स्मरणम होने के लिए पहले श्रवणम होना चाहिए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्रम सर जाता है. दे आर दिस. So therefore, intelligent person is one who can restrain his senses from the sense object. And हम लोग हमेशा उल्टा ही करते हैं. जो हमको पता है कि नहीं करना चाहे फिर भी वही करते हैं. So you want to become intelligent? Last 2 days to become intelligent. 1 तारीख से December 1. हाँ, तुमको गटारी मनाना मनाओ. हाँ 3 days. एक बोनस मिलेगा. और एक बोनस वो मनाने के लिए मिला उसको. So please remember, control your senses. Very difficult. Sense objects are so attractive. After leaving certain things, for me the favorite sabji used to be stock onion. आता था ना, stock onion का sabji used to be my very favorite. That with some little potatoes and nicely fried. So the taste of the sense object still stays, though you have left it. The taste of the sense object still stays, but it can become activated any moment it wants. So you have to be more intelligent. So I used to love that vegetable. But when I came to know ISKCON में आने के बाद प्याज लहसुन नहीं खाना है. मैं तो नॉनवेज कोई खाया नहीं, कभी शराब नहीं पी, कभी व्यभिचार नहीं किया, कभी जुआ नहीं खेला. तो बोला एक चीज़ तो है स्टॉक ऑनियन, वो वेजिटेरियन है, शरीर के लिए अच्छा है, हेल्दी फूड, सलाड में भी खाता था. बट इसका सब्जी यूज्ड टू बी वन ऑफ माई फेवरेट्स. बट देन whenever I used to pass by the market, that used to look at me. I used to look at that. But then you have to become intelligent. Satsang only can keep you. But if someone has controlled his senses, but again if he loses his association and alone starts trying to do devotion, bound to be everything will crumble. Everything will crumble. हाँ ठीक है, भगवान ने कहाँ लिखा है भगवद गीता में? बताओ मुझे. कहीं भगवान ने लिखा है क्या भगवद गीता में ऑनियन नहीं खाना है, गार्लिक नहीं खाना है? नहीं. मैं खाता हूँ. अरे बाबा, ये आचार्य ऐसे ही बोलते हैं क्या? आर आचार्यस फूल्स? Why would they say जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग? These are all things which are true. अच्छा, अगर इतना सब सही है, अगर आप आपके स्कूल में बच्चे को भेजोगे, स्कूल में हमेशा 2 कैटेगरी के बच्चे होते ही हैं, गुड, बैड एंड द अगली. हाँ, ऐसी वेरी फेमस मूवी इन आवर टाइम्स, गुड, बैड एंड द अगली. सो यू हैव द गुड, बैड एंड द अगली, 3 types of categories of students. What type of students would your child you like to keep in which company? Definitely with the good. Why? अरे उनके साथ रहेगा, वो भी पढ़ेगा, तू भी पढ़ेगा, तुझे पढ़ने का मूड नहीं रहेगा तो भी उसको बिगाड़. ये नहीं कि आपका लड़का उसका लड़के को बिगाड़ देगा. Have you ever thought of that? That your son or your child will spoil by his association? उसका भी सत्यानाश हो जाएगा. वो सेकेंडरी बात है. But at least you make sure कि your child is in a proper association, अच्छे बच्चों के साथ रहे. बट जब खुद का एसोसिएशन की बात आती है तब कहाँ आपका विवेक जाता है? When it comes to your child, no, you want your child to be studying with studious children, or who are good children, so to say, who don't give bad words, who don't have bad habits and all that. You select, and automatically birds of the same feather flock together. It's by default. आप कहीं भी जाओ, an English proverb says ना, show me your friend and I will tell you what you are. It's like that. आप आपका दोस्त से मिला दो, मैं आप कैसे मैं समझ जाऊँगा. It's like that. So it is very important, and whenever association is very important.
That only will protect your intelligence. Intelligence develops, but intelligence of its own cannot survive unless and until there is proper association. अब शराबियों के बीच में बैठ के you will think you will become a चाणक्य पंडित. You are a fool. You cannot become. You cannot become. Automatically that association. If I am going to get up and get down with only drunkards and non-veg eaters and womanizers, their talks will incite that desire inside you. Oh, I was sleeping with that woman, I was running with that woman, I was playing with that woman. May it be a boy or a girl. Nowadays it's the same. When those things, you are in that environment and always listening those things, one day or the other, when the condition becomes favorable, that desire will rise in your heart also. So it is better, आप उन चीज़ों से ज़रा दूर ही रहो. So the best is सत्संग. No, कोविड-19 का वैक्सीन सिर्फ दो बार लेना पड़ा. बट माया से वैक्सीन every time, every week, every day you have to take. And what is that vaccine? First is you have to chant. Second, control your senses. That is, no meditating, no intoxication, no illicit sex and no gambling. Third, association of devotees. And fourth, attending classes regularly. Attending classes means satsang. ठीक है, किसी को क्लास अटेंड नहीं करने को अच्छा लगता है, ठीक है, प्रसाद के लिए आ जाओ, प्रसाद खाओ. दैट इज ऑल्सो एज गुड एज दैट. एटलीस्ट तन शुद्धि मन शुद्धि. जैसा आपका तन शुद्ध होगा वैसा मन भी शुद्ध हो जाएगा. Okay, today anyhow we have to complete this class today. Okay, please read the purport. What is night for all beings is the time of awakening. Is the time of awakening for the self-control, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. No, I complete the first. Read the purport of the earlier verse. One can curb the forces of sense gratification only by means of Krishna consciousness, or engaging all the senses in the transcendental loving service of the Lord. As enemies are curbed by superior force, the senses can similarly be curbed not by any human endeavor, but only by keeping them engaged in the service of the Lord. One who has understood this, that only by Krishna consciousness is one really established in the intelligence, and that one should practice this art under the guidance of a bona fide spiritual master, is called a sadhaka, or a suitable candidate for liberation. Okay, I'll ask one question here. Bhumi, Apo, Anulo, Vayu, Kham, Man, Buddhi, Ahankar, Evacha. These are the 8 elements. Which is the strongest? Man. Earth is not strong. Vayu is not strong. Ahankar is not strong. ईर्ष्या ईर्ष्या तो है ही नहीं, भगवान ने बनाई नहीं, वो तो हमारे अंदर आती है. याद रखो, ईर्ष्या भगवान ने नहीं बनाई है, हमारे अंदर आ जाती है. क्यों? तेरे पास तेरी सफ़ेद साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों? दैट इज़ ईर्ष्या, राइट? सो हाउ विल यू अंडरस्टैंड दैट? कैसे समझोगे? विच इज स्ट्रॉन्गर? विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग आउट ऑफ द 8? Lord clearly says, earth is strong. Earth से stronger is the other element, that is earth, water, fire, air, ether. एक element stronger. How many? 10,000 times stronger. Finally, it goes. Man, ahankar is stronger, but उससे stronger is the soul. But the strongest thing is beaten by the weak वीक माइंड. जब मन भागता है तो ये इंद्रिय तृप्ति पे चला जाता है. भुगतना किसको पड़ता है? सोल को भुगतना है. द सोल सफर्स बिकॉज दिस इज गॉट डिविएटेड. सो इट हैज गॉट डिविएटेड. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या, व्हाट इज द एक्चुअल
स्ट्रेंथ which is strongest बेचारा सबसे ज़्यादा पिटता है, because we are not strong in our intelligence. Intelligence is stronger than mind से stronger is intelligence, और intelligence stronger is अहंकार. भूमि आपो अनलो वायु खम मनो मन बुद्धि अहंकार. These are all the sequence by which strength increases. But finally, when the अहंकार increases, अहंकार होना जरूरी है, पर हमारे अंदर गलत अहंकार है. That's why Prabhupada calls it as false ego. So what is the ego? Ego is for identifying our own self. And what is our self? That we are part and parcel of Lord. हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के पुत्र हैं. तो ये छोड़ के हमारा क्या हो रहा है? फॉल्स अहंकार हो रहा है. फॉल्स अहंकार मतलब हमारा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है कि मैं कुछ हूँ, मैं कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल. नथिंग इज इन योर कंट्रोल. माइंड यू, नथिंग इज इन योर कंट्रोल. यू कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई एनीथिंग. यू आर टोटली पावरलेस. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ठीक. Yeah, please read the next verse, Prabhu. Now you read. Now you read the next. Yeah, translate. What is night for all beings is the time of awakening for the self-control, and the time of awakening for all beings is night for the introspective stage. This is for specially for those who consider out of place when they are doing devotion. प्रभु जी वो लोग तो सब दारू पी रहे हैं, मैं नहीं पी रहा हूँ. वो लोग सब लेट नाइट कर रहे हैं, मैं लेट अर्ली मॉर्निंग कर रहा हूँ. दे स्लीप लेट नाइट, आई कम अर्ली इन द मॉर्निंग. कई बार हम लोग मंगला आरती आते हैं तो BFR से लोग वापस जाते रहते हैं घर पे. हाँ, हम लोग मॉर्निंग आरती करते हैं, वेरी कॉमन. अगर आप जू सर्कल स्ट्रेट से आते थे ना, देयर वाज अ बिग बार, एंड जब मैं सुबह आता था वो लोग सब पी के अलग लेके निकल रहे हैं, एंड मैं 4:10 4:15 को वहाँ से मैं क्रॉस करता था. सो लाइक इट्स बी लिटिल ट्रैफिक जैम सो टू से. और कुछ नहीं, लोग जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, उनके लिए अभी गुड नाइट होने वाला है, दे गोइंग टू गो टू स्लीप. एंड हमारा नहा धो के हम लोग फ्रेश हैं टू डू मंगला आरती. सो व्हाट डज लॉर्ड ट्राई टू से बाय दिस? ही इज सेइंग इज हमेशा विपरीत परिस्थिति होगी जीवन में. लो पीपल विल से यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, समथिंग उल्टा. ये उम्र थोड़ी है आपका भक्ति करने का. दिस इज द टाइम टू एंजॉय. बिकॉज क्या है ना, नरक में अकेले कहाँ क्या करेंगे. आप लोग साथ में रहोगे तो ना कंपनी रहेगा ना. हम लोग भी ऐसे करते हैं ना. हाँ, पिकनिक चलते हैं, चल सब पिकनिक जाते हैं. हाँ, सब लोग मिलके फ्रेंड्स क्यों जाते हैं? क्यों? अकेला क्या करेगा? यू कैन गो अलोन ऑल्सो. टुमारो मॉर्निंग कैन गो टू लोनावाला अलोन, स्टैंड देयर. क्या मजा लेगा? अनलेस अंटिल यू डोंट हैव 4 फ्रेंड्स. सो दे ऑल्सो नो दे आर स्लेव ऑफ द सेंसेस. तो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो बोलेंगे हाँ प्रदीप आजा हमारे साथ, चलते हैं. क्या है, नरक में बेचारा वो अकेला क्या करेगा? तो वहाँ पे आप बस कंपनी देना है तो जा सकते हैं. बट देन व्हाट एक्टिविटीज वी डू अदर्स मे नॉट डू, और विल नॉट डू, रादर विल नॉट डू. बट डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ you may feel that am I an odd man out, especially the youth. पूरी दुनिया मज़ा ले रही है, बस ये प्रभु जी बोलते हैं मज़ा नहीं लेने का. आई एम टेलिंग द ऑपोजिट ना. मैं आपको अलग ही बोल रहा हूँ या उल्टा ही बोल रहा हूँ कि भाई ये नहीं करना है, पर पूरी दुनिया ये कर रही है. यू सी द मैक्सिमम इंटरनेट ट्रैफिक इज बिटवीन 11 to 12. नॉट ड्यूरिंग द डे व्हेन ऑफिस आवर्स, बट इट इज मैक्सिमम बिटवीन 11 to 12 और 1 नाइट टाइम पे. क्यों? एवरीवन इज बिजी इन दैट. Some are busy watching porno, some are busy watching some nonsense and some shows, some cricket, various types of people are there. But basically, all are trying to do something. Whereas what does Shastra say? Why Shastra? Even the English proverb says, early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. पुराना कहावत है. कोई ये विदेशों, अगर आपको विदेशी चाहिए, अगर इम्पोर्टेड चीज़ ही का आदत है आप लोगों को, तो इस विदेशी चीज़ को अपनाओ ना. आप वो क्यों नहीं अपनाते हो? Why don't you adapt that foreign technology which has been given to us in earlier days? Because why you want to stay awake late night? Because your senses are demanding for it. Your senses want to enjoy that. That is why you are sitting. याद रखना, अगली बार से लेट नाइट होगा ना तो मुझे याद करना. When you are watching internet,
when you are busy watching internet or we are watching some movie or some nonsense, तब याद रखना, हाँ अरे प्रभु जी बराबर बोले, और शट करना, मुझे शट डाउन करना. Then you people have got two options ना, प्रभु जी शी ऐसा नहीं होना है. प्रभु जी यू गो असाइड, हाँ यू आर कमिंग इन बिटवीन माई स्क्रीन, हट जाओ आप, ऐसा नहीं होना चाहिए. शट डाउन द स्क्रीन एंड कम बैक टू योर नॉर्मल लाइफ. दैट्स द डिफरेंस. सो व्हाट इज गोइंग टू बी, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑलवेज सेड, हम दुनिया को देख के हंसते हैं, दुनिया हमको देख के हंसी. बड़ी जवानी में बाल उड़ा के, नहीं बाल नहीं होता तो बात अलग है, अच्छे खासे बाल होते भी बाल उड़ा के घूम रहा है, पागल आदमी है. और हम सोचते हैं वो ऐसा ऐसा बाल करके घूमते हैं लोग, उनको देख के हम हंसते हैं, ये पागल आदमी है बाल ऐसा लगा के घूम रहा है. सो वी बोथ लाफ ईच अदर, बट देन हु इज़ राइट? यू मे से सर, it is a democratic country, this party has also got the right, this party has also got to claim that they are right. We go to a neutral thing, and what is a neutral thing which decides which is right and wrong? That is Shastra. Bhagavad Gita is one of the important Shastra which decides आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो. If you are doing right or wrong, if you are in any dilemma, you have to refer to the Bhagavad Gita Shastra. And if you are not able to interpret the Shastra through your ways, you can get it interpreted by a spiritual master. So that is how it is. Okay. Oh, काफ़ी verses है. Only 3 verses are left. चलो, let's finish it off fast. Read. There are 2 classes of intelligent men. One, No, read the next verse, translation. Person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever been filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desire. तो पहले तो फीस फॉर्मूला बताया, यहाँ पे कैसा बता रहे हैं, हाउ टू अचीव पीस, शांति कैसे पाना है. एंड शांति कैसे पाना है, दिस वर्ड्स प्लीज बाय हार्ट एवरीवन, सुपर वर्ड्स. अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र आप प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामान यम प्रवशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामिहि. इट सेज हियर, वापस लॉर्ड स्टार्ट्स विथ एन एग्जाम्पल. अपूर्यमानम अचलम प्रविष्टम समुद्र आप प्रवशन्ति यद्वत्. जैसे आप देखोगे कितने गैलन लीटर्स, मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर आर कमिंग फ्रॉम द रिवर एंटर्स द सी. समुद्र में सब जल जा रहा है, सारी नदियों का जल जा रहा है. नॉट ओनली इंडिया, दुनिया के जितने भी नदियां हैं सबके जल समुद्र में जा रहे हैं. मगर कभी समुद्र ने अपना नहीं, हमारा पानी का लेवल बढ़ गया, चलो मैं जू बीच के अंदर तोड़ के मंदिर आऊँ, कभी आया पानी? हैज़ द रिवर एवर, सी एवर ब्रोकन इट्स लिमिट्स? So here Lord is trying to say अपूर्यमानम, कितना भी आ जाए सब कुछ समुंदर ले लेता है, बट अपना लिमिट्स तोड़ता नहीं है. तद्वत कामाम, जिस वजह से ही डिजायर्स, अनलिमिटेड डिजायर्स आर पोरिंग इनटू योर माइंड. आप बस यहाँ से बाहर निकले नहीं, वड़ा पाव वाला दिखा, मोमोस वाला दिखा, चाइनीज़ नूडल्स वाला दिखा, आगे जाके ब्यूटीफुल व्हाट यू से शॉप हैविंग लाइट्स, ब्यूटीफुल लाइट्स, हाँ घर पे लगाना है. देन यू गो अहेड, यू विल सी सम नाइस पोस्टर ऑफ अ नाइस मूवी, might be some exposed photograph or some female and excite you to see that movie or something. So all this will come. You cannot stop it. Please, if you think, नहीं I'll go to a secluded place, किसी जंगल में अकेले जाके बैठ जाऊँ, मतलब सब आँख कान में सब रुई डाल के बैठ जाऊँ, नहीं होने वाला. Wherever you go, you will see. सौरभ मुनि, सौरभ ऋषि, क्या हुआ उनके साथ? He said, बहुत प्रॉब्लम है इस धरती में, मैं जाता हूँ. पानी के अंदर उसने एक दीवार खड़ा किया. All 4 sides he created a wall and he was sitting there and he was doing तपस्या. बट वहाँ पे भी उन्होंने देखा 2 मछलियाँ, they are enjoying sex. Even they are enjoying sex. I am not enjoying sex. बस पार आए, मानदाता को बोला मुझे आपकी पुत्रियों से शादी करना है.
तो उसने बोला किस वाली पुत्री से? ना आप तो मानदाता राजा ऋषि ने देखा सौरभ मुनि वॉज क्वाइट ओल्ड पेल, ऑल एल्गेज गोन ओवर हिज बॉडी। ही सेड मेरी कोई लड़की से शादी नहीं करी। तो क्वाइटली ही सेड ठीक है, मैं जो आप मेरी सारी लड़कियों को मिल लीजिए, जिस लड़की ने हाँ हो बोल ओके बोल दिया उससे शादी कर लो। तो इमीडिएटली उसने गया सारी लड़कियों के सामने अपने योग बल से ही मेड हिमसेल्फ हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। ऑल द गर्ल्स सेड वी वांट टू मैरी and he married everyone. And after 1000 years of enjoying, he realized that there is no charm in marital life. Again he left, again he went back to doing tapasya. Point what I am trying to say here is, wherever you may go, you may not be able to cut off that sense gratification tool, you know, the various tools. आप टीवी देखोगे 1000 ऐड आएंगे, चाहे वो सेंट का ऐड हो या लिपस्टिक का ऐड हो या ये हो, ऐसे अपूर्यमानम, कभी ख़त्म नहीं होने वाले। जैसे गंगा नदी कभी ख़त्म होती है? बहती जाती है, बहती जा रही है, बहती जा रही है। बट समुद्र, इसके मतलब से समुद्र हैज़ नेवर ब्रोकन इट्स ब्रैंक, इज नॉट टोवर्ड इट्स ब्रिंक्स। सो व्हाट डज इट से? वैसे ही आपके मन में हजारों इच्छाएं आती रहे, फिर भी यू डोंट हैव टू, वन हु इज एबल टू कंट्रोल इट, ही इज सेड टू बी इन पीस। यम प्रविशन्ति यद्वत् कामाम यम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिम आपनोति, उसको शांति मिलती है। आपनोति मीन्स टू गेट, सशांति मीन्स कंप्लीट शांति मिलती है। न काम कामी, जो उस कामनाओं को पूरे करने के लिए जो बैठा है, वो काम कामी को शांति नहीं मिलने वाली है। सो अगेन दिस एंटायर वर्ड्स लॉर्ड इज एक्सप्लेनिंग, just because he explained that earlier verse कि अशांतस्य कुत सुखम। तो अगर आपको शांति चाहिए तो उसका सीक्वेंस यहाँ बता रहे। तो पहले शांति के लिए लोग सोचते हैं हाँ आज पेट भर के खा लिया, आज पेट भर के शराब पिया, आज पेट भर के नॉनवेज खाया। इनफैक्ट इन चीज़ों को रोकने से आपको शांति मिलेगी, ना कि ये और करते करते शांति नहीं मिलने वाली। सो अगर कोई कहता है प्रभु जी आई वांट पीस ऑफ माइंड, इफ़ यू वांट पीस ऑफ माइंड, फर्स्ट यूज योर माइंड, कंट्रोल योर माइंड एंड देन कंट्रोल योर डिजायर्स, एंड द डिजायर्स रेजेस इन द माइंड। व्हाट इज द जॉब ऑफ द माइंड? थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। तो थिंक भी करेगा, विल भी करेगा। विल मतलब डिजायर, I feel like eating today पाव भाजी, I feel like eating this। माइंड तो मांगते रहेगा, आपको डिसाइड करना है उन इच्छाओं को कट करना है या नहीं करना है। सो दिस इज अ पीस फॉर्मूला व्हाट लॉर्ड इज ट्राइंग टू टेल ओवर हियर कि a person who is not disturbed by the instant flow of desires that enters like river into an ocean, which is ever being fulfilled but is always still, can alone achieve peace, and not a man who strives to satisfy such desires। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरे करने के चक्कर में जीवन भर भागता रहे, whole life he may run in trying to fulfill his desires, he can never get peace, because at no point all your desires can be fulfilled। एंड मोमेंट तक कोई नहीं कोई इच्छा तो रह ही जाएगी, कोई ना कोई नहीं, हजारों इच्छा रह जाएगी। एक आध इच्छा पूरी हो सकती है बट हजारों इच्छाएं रह जाएगी। एंड इच्छाएं रह जाती है तो आपका मरण बिगड़ जाता है। इट स्पॉइल्स योर डेथ, बिकॉज यम यम वापि स्मरणम भावम त्रजायत अंत कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। ओके 71 72 बस। लेट्स कंप्लीट द चैप्टर टुडे। विहाय कामान सर्वान् पुंसांचरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकारा सशांतिम अधिगच्छति। हाउ अगेन ही इज रिपीटिंग, कैसे वापस शांति मिलना चाहिए? सशांतिम अधिगच्छति। अधिगच्छति मतलब जल्दी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? विहाय कामान सर्वान। व्हाट डज दिस मीन? कामान सर्वान इज प्लूरल। अब एक कामना छोड़ सकते हो, दो कामना छोड़ सकते हो। विहाय कामान सर्वान,
एक तो कामनाएं और वो भी सारे। तो इंटेलिजेंस आज बढ़ रहा है प्रदीप के यहाँ पे, बाल सारे खड़े हैं जैसे विहाय कामान सर्वान पुंसान चरति निष्प्रह। व्हाट डज दिस निष्प्रह मीन्स? डिजायरलेस। उसके अंदर कुछ इच्छाएं नहीं है, फिर भी वो चरती मतलब घूम रहा है एक जगह। ऐसा नहीं कि कमरे में अपने आप को लॉक करके रखा है, क्या करूं, बाहर जाऊंगा तो पाव भाजी खाऊंगा ना, बाहर जाऊंगा तो पानी पूरी खाऊंगा ना, बाहर जाऊंगा तो मैं शराब पीऊंगा, बाहर जाऊंगा तो नॉनवेज करूंगा। मैंने अपने आप को लॉक रखा है, नहीं। पहले वर्ष के लिए, इसके लिए भगवान ने पहले वर्ष में क्या बोला? एज द रिवर फ्लोज डिजायर्स विल फ्लो, बट वन हु इज नॉट एजिटेटेड बाय दैट he will get shanti, not one who is trying to fulfill his desires. This was the earlier verse. Here again, what is Lord reconfirming that in another way? He says, सारी कामनाओं को छोड़ के जो व्यक्ति चरति निष्प्रह, who is roaming around desirelessly, उसका क्या होगा? निर्ममो निरअहंकार, then he will be ममा, मेरा मेरा मेरा, निर्ममा, ये मेरा नहीं है, मैं इसका भोगने का मैं अधिकार नहीं रखता हूँ। कल मैंने एक छोटा सा कहानी बताया था, किसको याद है? हाँ आप ही, हाँ आपको याद है? कालिदास मशाल, हाँ घर जलाने, हाँ याद है आपको? हाँ तो कैसा, उससे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? हाँ नहीं तो भगवान का ही है। हाँ, जब जिस वक्त आपको घर के अपने को धन जलाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर को जलाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अटैचमेंट्स को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज से मैं इंटेलिजेंट हो गया हूँ, तू मेरा बच्चा नहीं चाह। यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट, यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड कि भाई ये जन्म में भगवान ने इससे मुझे मेरा पुत्र बनाया या पुत्री बनाया है, इस जन्म में ये मेरी पत्नी है, इस जन्म में ये मेरा पति है, सेवा करना मेरा धर्म है। इट इज़ माई ड्यूटी, इट्स माई बोनाफाइड ड्यूटी दैट आई शुड सर्व देम। बट प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, इस अटैचमेंट को डिटैचमेंट से करने के लिए सिंपल, ये तो भगवान का अंश है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इट। दिस, ये मेरा घर नहीं है, ये भगवान का घर है, ये भगवान का घर है, ये भगवान की गाड़ी है, भगवान का फैक्ट्री है, भगवान का सब कुछ है। आप उस हिसाब से रहोगे तो आप अपने आप उन चीज़ों से जला चुके हो, ना कि आपको फिजिकली जाके उसको जलाने की जरूरत नहीं। दैट इज व्हाट इज निर्ममो निरअहंकार। ये मेरा पास है, इसके लिए आई एम पॉसेसिंग दिस। अहंकार जो उस व्यक्ति के पास है कि भाई हाँ मेरे पास ये है वो है, भाई क्षण में वो अहंकार दूर कर देते हैं भगवान। क्या हुआ? 3000 करोड़ का साइरस मिस्त्री ना, क्या हुआ उसके पास? 3000 करोड़। एक करोड़ में कितना होता है कई लोगों को वो भी पता नहीं। 3000 करोड़ किस चिड़िया का नाम है? हम जैसे लोग तो ओनली कैन अंडरस्टैंड, इमेजिन द नंबर ऑफ जीरोस, इन्फिनाइट जीरोस समझ सकते हैं। बट प्लीज अंडरस्टैंड, ही वॉज लाइंग ऑन द रोड, हिज बॉडी वॉज लाइंग ऑन द रोड and the best of the car could not save him. So what do you understand from this? अहंकार करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज़ का अहंकार मत करो। एवरीथिंग इज टेम्पररी। माइकल जैक्सन tried all the ways and means that he will not die. He had 40 organ donors lying ready in his house. घर पे रखा था, बाहर से कौन पकड़ के लाएगा? Ready in his house. He had an entire operation theater table ready. कोई भी अगर वाइटल ऑर्गन चला जाता है, he would have a alternative for that. Plus he had kept everything, mind you, medically he didn't want to die, and in fact he died earlier than everyone else. जितने भी वेस्टर्न एक्टर्स एंड सिंगर्स थे उससे जल्दी ये मर गया। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? यू कैन नॉट फाइट फेट, नसीब से आप लड़ नहीं सकते हो। दीज आर ऑल प्रूफ्स। सो आप अहंकार किस चीज़ का कर रहे हो? जब आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है, मेरा नहीं है, तो अहंकार भी नहीं आना चाहिए। तो निर्ममो निरअहंकारा सशांतिम अधिगच्छति, वो आदमी के पास पीस आएगा। हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहे हैं, पीस आया तो पीछे पीछे हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आएगा। पीस ही नहीं है आज व्यक्ति के पास, अशांति अशांति अशांति, सब कुछ है फिर भी अशांत।
For small things he is getting excited. Why? This is the reason. So again, this also comes as a part of the peace formula. So finally, the last verse. Who will read the last word translation? That is the way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If not this, if one is thus situated, even at hour of death, one can enter into the kingdom of God. तो यहाँ पे भगवान ने ये कह दिया है that at the time of death also, अगर if he is able to remember me, and he should be unbewildered. Unbewildered मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, द्वंद नहीं होना चाहिए. है पूरा जीवन दारू नहीं पिया, नॉनवेज नहीं खाया, अभी आगे जाके कृष्णा रहेगा नहीं रहेगा, भगवान मिलेगा नहीं मिलेगा. दैट इज ऑल्सो bewildering. क्या मालूम. एंड एक वन पर्सन आस्क्ड प्रभुपाद पूरा लाइफ आई फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड आई लिव एकदम प्याज लहसुन भी छोड़ के मैं खाऊं सब करूं, और एंड में सब होने के बाद मुझे पता चले कृष्णा है भी या नहीं, क्या गारंटी है. दैट टाइम प्रभुपाद सेड, अरे भाई लेट्स से नहीं भी है तो भी हमको क्या नुकसान है. वी आर ईटिंग, चैंटिंग, मेरी मेकिंग, प्रसाद भरपेट प्रसाद खा रहे हैं, नाच रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, कूद रहे हैं, वी आर हैप्पी. बट वॉट इफ यू कम टू नो दैट कृष्णा इज देयर, तब क्या करोगे. यू कैन रिवर्स योर होल लाइफ, राइट. यू कैन रिवर्स योर होल प्लानिंग ऑफ योर लाइफ, planning of sense gratification. You can't reverse that. So please understand, this is very important. This is a conclusion. This is a conclusive words of the entire second chapter of Bhagavad Gita. पूरा भगवद गीता का सेकंड मतलब जो दूसरे अध्याय में जो चीज़ें भगवान ने बोली है उसका एक सम बता रहे हैं. He is giving the crux of it. And he says, that is the way the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. कभी कन्फ्यूजन नहीं होता है, कोई द्वंद नहीं होता है, ये करूं न करूं. जब भक्ति मार्ग में है वो कभी इज नेवर बिविल्डर्ड. इफ वन इज दस सिचुएटेड इवन एट द टाइम ऑफ डेथ, पूरा जीवन भले उसने गलत कार्य किया हो, अगर एट द टाइम ऑफ डेथ उसको अगर मन में लगे कि भाई I should not be bewildered because of my doubts in thinking about God, I am unbewildered. Even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. The first time Lord is speaking now something about entering His kingdom. अभी तक भगवान ने ऑफिशियली भगवद गीता में भगवान के धाम में जाने की बात नहीं कर रहे हैं. अब थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाने वाले हैं. Step by step, Lord is going to increase the. Now third chapter will become more intense. Fourth, fifth, there's an intensity बढ़ाएंगे. So first is like junior KG. First he was playing with the Arjuna was only speaking, Krishna was keeping his mouth shut. Second chapter, Lord spoke, but he spoke something which was relevant for him right now. What are the first things to do? प्रभु जी आपको तो भगवत धाम जाना है. अरे जान धाम जाना है तो पहले तो अपना इंद्रियों को दमन करना तो सीखो, पहले उसको तो कंट्रोल करना सीखो. वो ही नहीं कर पाओगे, नहीं प्रभु जी अब मैं सीधा भगवत धाम जाऊंगा. सॉरी, फर्स्ट यू विल हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस, अचीव सम पीस. देन यू हैव अचीव पीस, यू विल अटेन हैप्पीनेस. एंड इन दैट मूड व्हेन यू विल बी रेडी टू डू डिवोशनल सर्विस, यू विल बी एंटाइटल्ड टू एंटर हिज किंगडम. हरे कृष्णा. किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं.